भी जिस तरफ से खेल का खिलाड़ी रहा है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और बड़ी संख्या में आप देखते हैं ये प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कुछ के लोग दृश्यों में आपको दिखाई दे। बिल्कुल। और लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरलम की एक सभा में विकसित केरलम इनके एलडीएफ और यूडीएफ के सरकार में नहीं आना സുരക്ഷയോടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വാണിടും വരെ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया। और इसके साथ हमने ये भी വീരോടെ പോരാടി വിജയകമലം वो भी एक तरीके से महत्वपूर्ण सीट है, तो उस समीकरण को कैसे समझ सकते हैं? देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज है। और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार केरलम के अंदर अपने प्रदर्शन को सुधारती रही है। आप देखें कि 2016 की जो विधानसभा का जो प्रतिशत था वो 12% 2021 में ഇന്ന് വികസിത ഭാരതമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മോദിജിയാണ് നാളെ വികസിത കേരളമാകാം നമ്മൾ നല്ല മിടുക്കുള്ള നായകരാണ് തൊട്ടത് പൊന്നാക്കി മാറ്റിയവരാണ് ഒത്തിവർ കേരളം ഒന്ന് നയിച്ചാൽ നൂറിൽ നൂറാണ് മാറാത്തത് മാറാനായി എന്നും का ही असर है कि आज करुणाकरण की जो केरल की सबसे ताकतवर और सबसे बड़े വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. മതസൗഹാർദ്ദം മൂട്ടി വളർത്താൻ മതിലുകളില്ല മനുഷ്യന വേണ്ടി എല്ലാ പേർക്കും തുല്യത നേടാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, നിലവരവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നേറിയിടാൻ എല്ലാ പേർക്കും തൊഴിലുകൾ നേടാൻ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ക്ഷേമം നിറയാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. തീവ്രവാദമില്ലാതാക്കാൻ രാജ്യസുരക്ഷയുറപ്പുവരുത്താൻ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു ഇത്രത്തോളം നാട് മുറിച്ചു കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. കടത്തിൽ നിന്ന് കരയേറിയിടാൻ സുസ്ഥിര ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വികസിത കേരളമാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം വികസനം എല്ലാ പേർക്കും നീതി അഴിമതിയില്ല ഭരണം വികസിത ഭാരത നേട്ടം മോദി വരുത്തിയ മാറ്റം കേരള നാടിനു വേണ്ടി ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇനി വരണം ബിജെപി. ബിജെപി 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 വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചു കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. यहाँ पर सवाल अब ये भी उठते हैं कि विकास बनाम धर्म और पहचान की राजनीति, क्योंकि हमने देखा भाजपा यहाँ इन्फो पार्क जैसे बड़े पार्टी की सरकार है और यही कारण है उसी विकास मॉडल को लेकर और വിശ്വാസങ്ങൾ
വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. മതസൗഹാർദ്ദം മൂട്ടി വളർത്താൻ മതിലുകളില്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി എല്ലാ പേർക്കും തുല്യത നേടാൻ ഇനി വരണം BJP. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, നിലവരവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം BJP. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം BJP. ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നേറിയിടാൻ എല്ലാ പേർക്കും തൊഴിലുകൾ നേടാൻ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ക്ഷേമം നിറയാൻ ഇനി വരണം BJP. തീവ്രവാദമില്ലാതാക്കാൻ രാജ്യസുരക്ഷയുറപ്പുവരുത്താൻ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു ഇത്രത്തോളം നാട് മുറിച്ചു കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം BJP. കടത്തിൽ നിന്ന് കരയേറിയിടാൻ സുസ്ഥിര ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വികസിത കേരളമാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം വികസനം എല്ലാ പേർക്കും നീതി അഴിമതിയില്ല ഭരണം വികസിത ഭാരത നേട്ടം മോദി വരുത്തിയ മാറ്റം കേരള നാടിനു വേണ്ടി ഇനി വരണം BJP. ഇനി വരണം BJP. BJP 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 വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. ഇനി വരണം BJP. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം BJP. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചു കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം BJP. और बीजेपी में अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो इसलिए है कि दोनों मिलकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि केरल में बीजेपी यहाँ आके एक थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है. ये आप जो आज त्रिशूर की वो भीड़ देख रहे हैं, रोड शो जो देख रहे हैं, इतने लोगों की तादाद देख रहे हैं, लंबे दूरी तय करते हुए पीएम का ये काफिला चल रहा है और हर जगह एक जैसा ही भीड़ आपको सामने में नजर आती है. तो ये बताने के लिए काफी है कि केरल में जो डर आजकल एलडीएफ और यूडीएफ के दोनों को है बीजेपी को लेके और एनडीए के एक तीसरे फ्रंट को आने को लेके, वो इसलिए है. आज शायद उनकी रात की नींद खराब हो जाएगी उन नेताओं की जो अब तक ये बात दे रहे थे, लोगों में एक नैरेटिव दे रहे थे कि, और ये क्राउड जो रैली में आप देख रहे हैं वो इस बात को बताता है कि वो पुराने नैरेटिव जो सेक्युलरिज्म के नाम पे आप इस केरल में इसी जगहों पे आप देखिए कि संघ के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है सिर्फ इस बात के लिए कि उसमें भारत की पहचान, भारत की अस्मिता, भारत की शाश्वत संस्कृति की बात जब की है तो उसको ये सजा मिली थी. आज उसकी ये आप जब देखते हैं ये समर्थन, तो देखिए कि उनका वो बलिदान इन त्रिशूर में, पलक्कड़ में और ऐसी जगह पे किस तरह काम किया है कि लोग एकदम अपना एक्सप्रेशन इस तरह से दे रहे हैं कि पीएम के इस रोड शो में घंटों इंतजार करके एक झलक देखने के लिए, एक झलक अपना दिखाने के लिए लोग किस तरह से चीयर्स कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं. ये एक दिन में नहीं होता प्रखर, इसके लिए पीढ़ियां खप जाती है. इसके लिए कोई एक दिन का ये काम नहीं होता है. जब एक पार्टी का इतना बड़ा मास बेस बनता है, ये पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के पसीने की, खून की, ये सारे उनकी कमाई होती है. जब बरसों बाद एक मजबूत संगठन बनता है, आज बीजेपी के पीएम मोदी के नेतृत्व में उसका वो कॉन्फिडेंस दिया है.
वो कॉन्फिडेंस चाहे आप पूरी चली जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के उस मेघालय के किसी अंचल में चले जाइए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो ग्राउंड पे उन्होंने मेहनत की है और पीएम जहां जाते हैं उनके स्वागत में पलक छावनी बिछाते हुए लोगों की भीड़ और एक हुजूम खड़ा होता है। ये एक दिन में नहीं होता है प्रखर, इसमें लाखों कार्यकर्ता, लाखों लोगों ने अपना पसीना बहाया है और ये दिखाता है कि त्रिशूल की लड़ाई इस बार तीनों पार्टियों में, बीजेपी, कांग्रेस के एलडीएफ, यूडीएफ और लेफ्ट के एलडीएफ, ये तीनों का एक मजबूत संघर्ष देने वाला है। जो बात नीरज कह रहे थे, ये बात अपने कानों में आया है कि एक कांग्रेस के नाम पे एक अच्छे से एक झूठ बोला गया था। आज अगर वहां देखिए तो सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे ज्यादा तुष्टीकरण है। वहां जिस तरह से चर्चा केरल के पॉलिटिक्स में लोग दिल्ली में വികസിത കേരളം നമുക്കു വേണം വാനിടം വരെ വിശ്വാസം കാത്തു രക്ഷിച്ചിടും വരെ സുരക്ഷയോടെ നമ്മളിവിടെ വാണിടും വരെ മാറ്റത്തെ തടയുന്നോർ മാറിടും വരെ വീറോടെ പോരാടി വിജയ കമലം ഇവിടെ വിടരും എന്നാൽ ഇനി മാറ്റം തുടങ്ങാം മാറാത്തതു മാറ്റാം ബിജെപി എൻഡിഎ എന്നാൽ ഇനി മാറ്റം തുടങ്ങാം വികസിത ഭാരതമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മോദിയാണ് നാളെ വികസിത കേരളമാകാം നമ്മൾക്കൊന്നായി നല്ല മിടുക്കുള്ള നായകരാണ് തൊട്ടത് പൊന്നാക്കി മാറ്റിയവരാണ് ഒത്തിവർ കേരളം ഒന്ന് നയിച്ചാൽ 100-100 മാറാത്തത് മാറാനായി എന്നും ഇനി ബിജെപി എൻഡിഎ തന്നെ മലനാടാകെ മാറ്റോടെ മിന്നിത്തിളങ്ങാനും ബിജെപി എൻഡിഎ തന്നെ जितने खड़े रहते हैं उसी की झलक आपको इन दृश्यों में दिखाई दे रही है कि एक बड़ी संख्या में आधी आबादी इस समय त्रिशूल की सड़कों पर प्रधानमंत्री और इसके पीछे हमारे जो विनोद मिश्रा जी हैं वो सही कह रहे थे कि इसके पीछे एक बड़ी लगन, बड़ी मेहनत होती है। और आप इसका कारण देखिए कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी का जो 10.5% वोट था 2021 की विधानसभा में वो 11% से ज्यादा हो गया, लोकसभा में 13 से ज्यादा हो गया और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 16% से ज्यादा हो गया, 17-18% के आसपास हो गया। तो ये बताता है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों के बीच में काम किया है। और आप देखिए त्रिशूल की अगर हम बात करें 37% से ज्यादा जो मत है वो त्रिशूल में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और सुरेश गोपी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे। कुछ समय पहले दिसंबर 2025 में जो तिरुवनंतपुरम में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 35% के आसपास जो वोट है वो हासिल किया था। तो ये बताता है कि एक अलग तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति यहाँ पर कर रही है उसके प्रति धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि उनके पास इससे पहले कोई ऑप्शन नहीं था। और आप देखें कि छोटे मोटे दल जरूर खड़े होते थे लेकिन सत्ता हमेशा से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही ट्रांसफर होती रहती थी। जो यूडीएफ वादे करता था एलडीएफ उन्हें पूरा करने की बात कहते सत्ता में आता था, एलडीएफ जो वादे करता था और यूडीएफ उन्हें पूरा करने की बात सत्ता में आता था। और आप देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयप्पा मंदिर में जो गोल्ड चोरी हुआ था उसमें यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो शामिल है
और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह की राजनीति है कि केरलम के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो एलडीएफ है वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, और एलडीएफ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है इस केरलम के अंदर, जबकि पूरे देश में इंडी गठबंधन में वाम दल जो केरलम है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, तमिलनाडु में साथ है। तो ये लोगों के जहन और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ रही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं लेकिन अंदर खाने एक मिली भगत है। और यही कारण है कि तीसरे विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ यहाँ पर पैठ बना रही है, और वो तेजी आपको इस रोड शो में दिखाई भी दे रही है कि लाखों की संख्या में इस भीषण गर्मी में केरल में जी बिल्कुल सब लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो ये एक बड़ी बात है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री की उपस्थिति उनमें एक अलग तरह का उत्साह पैदा करती है। पूरी पार्टी एकजुट तरीके से आप देखें कि चुनावी मैदान में एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ, जबकि आपने देखा होगा कि यूडीएफ जो ये बार बार कह रही है कि उनको सर्वे में जो स्थिति है उनकी स्ट्रांग बताई जाती है, लेकिन आप देखें कि यूडीएफ में कई तरह के मुख्यमंत्री पैदा हो गए। आप देखें 4 सांसद यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे ताकि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी में आ सके। आप देखें कि यहाँ के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके समर्थक कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप देखें शशि थरूर, उनके समर्थक उनको प्रोजेक्ट करते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। केशव वेणुगोपाल का एक अलग तरह का खेल चल रहा है और उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि केशव वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अलग अलग 3 गुट केरलम के अंदर कांग्रेस पार्टी में आपको दिखाई देते हैं, और वही स्थिति आप देखें कि लेफ्ट में भी दिखाई देती है। लेफ्ट के कई सारे नेता जो पार्टी से नाराज थे वो पार्टी छोड़कर यूडीएफ में आए या फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन की। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बेहतर विकल्प है कि केरलम की जो तमाम समस्याएं जो दशकों से सॉल्व नहीं हो पाई है, यूडीएफ एलडीएफ बिल्कुल उसका ध्यान रही है, वो उनका ध्यान दे पाए। ठीक है। विनोद, एक सवाल बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, पद्मजा वेणुगोपाल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, और पद्मजा वेणुगोपाल की बात करें तो वो केरल की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत के रूप में वहां पर जानी जाती है, जो कि उनको अपने पिता के करुणाकरण से मिली है। क्या पद्मजा कांग्रेसियों का समर्थन भाजपा में परिवर्तित कर पाएगी, भाजपा के समर्थन में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की जरूरत ये है कि जिस विचारधारा को लेके केरल की राजनीति अभी तक होती रही थी, और वो विचारधारा जो सेकुलरिज्म का था, वो सेकुलरिज्म को विचारधारा किस तरह से पूरी तरह से आप ये देखिए कि अपीजमेंट में बदल गया, और उस अपीजमेंट को एक्सपोज किया है केरल में। पिछले दिनों जब आपने देखा था वक्फ आंदोलन के वक्फ बोर्ड के जो पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी जिस समय में उसके अमेंडमेंट को लेके, अब आप सोचिए कि वहां कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, दोनों पार्टियां, एक कोई भी पार्टी इस चीज का विरोध मछुआरों के परिवार വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. വളർത്താൻ മതിലുകളില്ല മനുഷ്യന വേണ്ടി, എല്ലാ പേർക്കും തുല്യത നേടാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, നിലവരവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. മാറാത്തതും ഇനി മാറും, കേരളവും ഇനി മാറും, കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം ബിജെപി. ടെക്നോളജിയിൽ മുന്നേറിയിടാൻ ബിജെപി. തീവ്രവാദമില്ലാതാക്കാൻ രാജ്യസുരക്ഷയുറപ്പുവരുത്താൻ സ്വത്തും ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചു, ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചു, കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം ബിജെപി.
വിശാലമാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം വികസനം എല്ലാ പേർക്കും നീതി അഴിമതിയില്ല ഭരണം വികസിത ഭാരത നേട്ടം മോദി വരുത്തിയ മാറ്റം കേരള നാടിനു വേണ്ടി ഇനി വരണം BJP. ഇനി വരണം BJP. BJP 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 വിശ്വാസങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം BJP. ഇനി വരണം BJP. മാറാത്തതും ഇനി മാറും കേരളവും ഇനി മാറും കാലം മാറും മാറ്റത്തിനായി ഇനി വരണം BJP. ഇടതും വലതും മാറി ഭരിച്ചോ ഇത്രത്തോളം നാട് മുടിച്ചോ കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇനി വരണം BJP. केरल का ये बदलाव एक नया केरल एक पूरी तरह से एक मुखरित और एक बड़ा चेहरा जो है आपको दिखा रहा है। ये केरलम की एक नई तस्वीर है जो आने वाले इलेक्शन में आपको शायद एक बेहतर छवि के रूप में दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। नीरज भी हमारे साथ बने हुए। नीरज, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो ईसाई समुदाय का वोट है वो त्रिशूर विधानसभा में निर्णायक भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा का ईसाई समुदाय के साथ बढ़ता संवाद, विशेषकर चर्च के नेतृत्व के साथ जो बातचीत की कोशिश है, क्या विधानसभा चुनाव में उसका असर दिखेगा? देखिए, बिल्कुल दिखेगा। और विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जो मछुआरा समुदाय है वो यहाँ पर ज्यादातर ईसाई समुदाय है जी। और उनका ये कहना था कि हमको दशकों से ठगा जाता था, हमारी तमाम तरह की समस्याएं थी, लेकिन उनका समाधान करने की राज्य सरकार ने कभी कोशिश नहीं करी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जब आए और मछुआरों को लेकर और आप देखें कि सुरेश गोपी निकाली थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ईसाई समुदाय के लोग एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं और 37% से ज्यादा का जो वोटिंग परसेंट अगर सुरेश गोपी को मिला है तो ये बताता है कि ईसाई समुदाय धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आप देखें कि हमारे विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, पद्मजा जो यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी में आना कितना मुफीद है, क्योंकि एक तो केरल के दिग्गज नेता रहे हैं, उनकी बेटी है, उनका एक अपना पर्सनल जो वोट बैंक है, एक पर्सनल टच है। इसके साथ साथ ही 2021 के इलेक्शन में मात्र 946 वोटों से हारी थी वो, तो एक उनका भी जो अपना जनाधार बिल्कुल अपना जनाधार है। और अब भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे ईसाई समुदाय की बात करें या हिंदू समुदाय के दूसरे लोगों की बात करें या अलग अलग समुदाय की बात करें, तो उनका अगर वोटिंग परसेंटेज उनमें से कुछ परसेंट भी उनको मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि बम्पर तरीके से जिस तरीके से सुरेश गोपी ने लोकसभा का चुनाव जीता था, उसी तरीके से पद्मजा वेणुगोपाल यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत सकती है। और जिस तरह की भीड़ आप देखें, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम नेता पॉलिटिकल पार्टियों को करते हैं, तमाम नेता हमने देखा है कि रोड शो करते हैं, हमने कांग्रेस के नेताओं को भी देखा है, हमने और क्षेत्रीय नेताओं को भी रोड शो करते हुए, चाहे सपा आरजेडी और दूसरे लोगों को भी देखा है। ये जो केरलम के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं। इन लोगों को आप चंद पैसा देके सड़कों पर नहीं ला सकते हो। ये आप देख रहे हैं कि ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो बताती है कि अपने नेता के लिए वो कितना कमिटेड है, अपने वोट के लिए वो कितना कमिटेड है, और वो ये जानते हैं कि वो किस सरकार को चुनेंगे तो वो सरकार उनके लिए किस तरह से काम करेगी। तो निश्चित तौर पर आप देखें, युवाओं को देख लें इन दृश्यों में, आप महिलाओं को इन दृश्यों में देख लें, उन बुजुर्ग लोगों को देख लें जो दशकों से वोट देते आए, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते थे लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ की सरकारों में उलझ कर रह गए। अब धीरे धीरे वोटिंग परसेंट का बढ़ना, धीरे धीरे केरलम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का
जो मतों का प्रतिशत बढ़ना या सीटों का जो संख्या है वो धीरे धीरे उसमें इजाफा होना, ये बताता है कि एक विकल्प के तौर पर केरलम के लोग भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता आप देखें कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ आप देखें कि प्रधानमंत्री ने भी जो केरल का परंपरागत वाद्य यंत्र है उसको ढोल बजाकर एक तरीके से अपने चुनावी सभा की शुरुआत की थी। तो केरल की संस्कृति से उनका किस तरह से जुड़ाव रहा है। केरल के कई मंदिरों में प्रधानमंत्री आए हैं। सांस्कृतिक शहर की बात विनोद मिश्रा जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर पहुंचे, गुरुवायूर मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा करी है। तो संस्कृति को लेकर और सभ्यता को लेकर और उसको किस तरीके से पुरानी परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता में किस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है, उसकी एक नीति और उसकी एक सोच प्रधानमंत्री ने पेश की है। और यही कारण है कि ये सोच और जो उनकी जो नीतियां, उनके समर्थन में ये तमाम लाखों की संख्या में लोग आपको सड़कों पर दिखाई। बिल्कुल। और त्रिशूर केरलम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये जो तस्वीरें हम देख रहे थे, ये एक तरीके से भरोसा था, ये विश्वास था जनता के प्रति, अपने नेतृत्वकर्ता पर, कि जो देश की बागडोर है वो सही और सुरक्षित हाथों में है और विकास एक तो जो भी जिस तरफ से खेल का खिलाड़ी रहा है उसको तलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और बड़ी संख्या में आप देखते हैं ये प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कुछ के लोग दृश्यों में आपको दिखाई दे। बिल्कुल। और नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरलम की एक सभा में വികസിത കേരളം നമുക്ക് വേണം വാനിടം വരെ इनके एलडीएफ और यूडीएफ के बहकावे में नहीं आना है। സുരക്ഷയോടെ നമ്മളിവിടെ വാണിടും വരെ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया। और इसके साथ हमने ये भी देखा ധീരോടെ പോരാടി कि വിജയകമലം त्रिशूल വിടരും वो भी एक तरीके से महत्वपूर्ण सीट है। तो उस समीकरण को कैसे समझ सकते हैं? देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार केरलम के अंदर अपने प्रदर्शन को सुधारती रही है। आप देखें कि 2016 की जो विधानसभा का जो प्रतिशत था वो 12% 2021 ഇന്ന് വികസിത ഭാരതമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മോദിജിയാണ് നാളെ വികസിത കേരളമാകാം നമ്മൾ നല്ല മിടുക്കുള്ള നായകരാണ് തൊട്ടത് പൊന്നാക്കി മാറ്റിയവരാണ് ഒത്തിവർ കേരളം ഒന്ന് നയിച്ചാൽ നൂറിൽ നൂറാണ് മാറാത്തത് മാറാനായി എന്നും तो जो भी जिस तरफ से खेल का खिलाड़ी रहा है उसको तलाकों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और बड़ी संख्या में आप देखते हैं ये प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कुछ के लोग दृश्यों में आपको दिखाई दे। बिल्कुल। और नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरलम की एक सभा में വികസിത കേരളം നമുക്ക് വേണം വാനിടം വരെ इनके एलडीएफ और यूडीएफ के बहकावे में नहीं आना है। സുരക്ഷയോടെ നമ്മളിവിടെ വാണിടും വരെ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया। और इसके साथ हमने ये भी देखा ധീരോടെ कि പോരാടി त्रिशूल വിജയകമലം वो सीट है, വിടരും वो भी एक तरीके से महत्वपूर्ण सीट है। तो उस समीकरण को कैसे समझ सकते हैं? देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार केरलम के अंदर अपने प्रदर्शन को सुधारती रही है। आप देखें कि 2016 की जो विधानसभा का जो प्रतिशत था वो 12% 2021 ഇന്ന് വികസിത ഭാരതമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മോദിജിയാണ് നാളെ വികസിത കേരളമാകാം നമ്മൾ നല്ല മിടുക്കുള്ള നായകരാണ് തൊട്ടത് പൊന്നാക്കി മാറ്റിയവരാണ് ഒത്തിവർ കേരളം ഒന്ന് നയിച്ചാൽ നൂറിൽ നൂറാണ് മാറാത്തത് മാറാനായി എന്നും ഇനി ബിജെപി എൻഡിഎ തന്നെ മലനാടാകെ മാറ്റോടെ മിന്നിത്തിളങ്ങാനും ബിജെപി എൻഡിഎ തന്നെ ये अपने आप में पार्टी के जो लोग है खासतौर से केरलम के अंदर इसको दर्शाता है। और आप देखें कि अगर हम त्रिशूल की जैसा प्लान कर रहे थे कि सुरेश गोपी जो यानी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने